a lot of peer pressure also comes कि यार वो भी placed हो गया, वो भी placed हो गया. Okay. So hello, hi, welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush and आज के वीडियो में हम कुछ नहीं बात करने वाले हैं. आज के वीडियो में हमारा एक सिंपल सा टॉक होने वाला है और दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई गेस. और आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया मेरे से इंस्टाग्राम पे कि आप भैया एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेकर के आओ किसी का. शो आज हमारे साथ में एक ऐसा इंसान है जिसने कि मैं नहीं कह सकता एक ड्रीम कंपनी और मैं क्या बोलूं, ड्रीम कंपनी भी नहीं, एक अनएक्सपेक्टेड सा उसको जॉब लगा. ठीक है. सो अब मैं इंट्रोडक्शन दूं अपना, इससे बेटर है कि जो इस फील्ड में है उसी से हम इंट्रोडक्शन लेते हैं. सो वेलकम टू माय चैनल हेवलिना. Yeah, hi Piyush. Thank you हेलो so हेलो हेलो. much for the introduction. But let me give myself what I am and a brief introduction. So my name is Devlina De, and I'm basically from Kolkata, and I have been doing my engineering from Chandigarh Group of Colleges. And जैसे कि पीयूष ने कहा that yeah, it was very unexpected for a girl from a third tier college to crack a job in Google. So yeah, so right now I'm placed in Google under IT residency program, and yeah, it was quite unexpected. ओके. सो ये हम इसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे आगे. और आज में बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. जो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें गूगल क्रैक करने के लिए कोडिंग आनी कंपलसरी है, या हमारा कोडिंग अगर इतना अच्छा नहीं है, डीएसए नहीं अच्छा है, या फिर मशीन लर्निंग या फिर एडवांस टॉपिक्स नहीं अच्छे हैं, सो हम नहीं क्रैक कर सकते. तो आज ये सारे आपके मिथ्स यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं. सो पहला एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी तक की, मतलब बीटेक की 4 साल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं. सो अभी तक की जर्नी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू द फाइनल ईयर, और कोविड के चक्कर का वो छोड़ दो, जो 3 साल जो हमने कॉलेज में बिताए वो कैसा रहा? Well, the first year, well, it was like मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसके पहले in my +1 and +2 I had no formal education. So when I started with my first year in computer science engineering, it was like कि physics, chemistry ये सारे subjects हमें मिले. And पहले तो I was very confused कि ये क्या है, workshop भी था and याद है कि वो सारे electrical jobs and everything. So I was very I have chosen the right path or not. And उसके बाद it started with C programming. My pace is very slow. तो मुझे सीखने में बहुत time लगता है to understand things, to apply things. So first year ये तो absorb करने में चला गया that what I'm actually doing. I started learning, by my own, understanding everything practically from second year. So second year में I guess data structures was introduced और मुझे वो बहुत interesting लगा कि in this way we can apply the different data structures in our programming and कैसे वो optimize होते हैं. And by that time I was also making some very small projects जैसे कि hotel management या फिर calculator, मतलब बहुत छोटे छोटे projects. So I was getting interest. But the thing is that I was also very confused. During that time, during I will say fourth semester, I started reading a lot of research papers. So I started researching on various topics, जैसे कि computer networks, operating system, इसके बारे में और जानने की कोशिश की about machine learning. And around that time, I was very clear that what I wanted to do during my training. So during my 6 weeks training, I did a boot camp in machine learning, and I was very clear that okay, so I'm very much interested in machine learning. But again, जैसे जैसे subjects आते गए, I started getting more and more confused कि अरे ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है. It was by the end of third year that I finally decided that what are my core strengths are. And I saw that my core strengths are networking, operating system, database. So these three are my core points. Coding, yeah, I was good, but I was never a competitive coder.
So I thought कि चलो then I will just try to build my strength, which are these three core subjects best. तो by the end of third year उसके बाद ये कोविड शुरू हो गया when I reached my fourth year, and इसके बाद सारे interviews and everything, and here am I. कूल। अभी जैसा आप लोगों ने देखा कि इसने बताया दैट शी इज द टॉपर ऑफ अवर कॉलेज, या आई कैन से टॉपर, या टॉपर। सो मेरा एक अगला क्वेश्चन Kind ये है of, जो कि kind of. बहुत सारे बच्चों का है, जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है, उनका मेनली क्वेश्चन ये होता है कि सीजीपीए या फिर कॉलेज में जो मार्क्स होते हैं वो कितने इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं इन द पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। व्हाट्स योर व्यूज? Okay, right. So honestly speaking, my CGPA was very good. Like I'm a वेरी गुड, 9.12, एक्सीलेंट but एक्सीलेंट। but that doesn't mean कि जिस भी company में मैं बैठूंगी, like they will see my CGPA and they will okay, just come with us. No, it's not, absolutely not like that. CGPA shows that okay, you have passed an exam with good marks, but in order to be in a corporate field, you need to have skills. And the mistake which I was doing from the starting during my interviews, it was that I was trying to cover everything. So honestly speaking, CGPA is not the ultimate parameter of your intelligence or your worth, but that you need to keep an average CGPA if you are availing for campus placement drive. At least 7 CGPA you should maintain. Other than that, if you're trying for some off-campus placements, then the top MNCs don't even bother about your CGPA that much. सो इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि मतलब तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी कंपनी में बैठना है, तो अगर तुम्हें कॉलेज से चाहिए तो फिर बेटा पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, Right, ठीक है। right. पढ़ाई भी करो, और कॉलेज लाइफ तो है ही, कॉलेज लाइफ जो अभी फर्स्ट ईयर में उनकी तो पहला साल तो निकल गया समझो, कोविड ने सबकी रख ली। ठीक है। हाँ, घर आगे पे बैठे बैठे, घर हाँ. पे बैठो, घर पे बैठ के तो अब कुछ कर नहीं सकते, मटर गश्ती और हॉस्टल की लाइफ तो नहीं मिल सकती, तो आराम से बैठ के पढ़ाई करो। ओके, सो हमने इतना देख लिया कि जीपीए मैटर करता है प्लेसमेंट के टाइम में। सो Right. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज यू सेड कि हाँ मुझे नहीं करनी थी, या मुझे उसमें इतना ज्यादा नहीं मुझे पसंद आया, तो हर एक का ये एक रहता है ना कि मतलब हमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन या इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक किसी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, सी प्लस प्लस, जावा, और ऐसे एल्गोरिदम तो पूरा मतलब निचोड़ के खा जाना है उसको पूरा। सो इसके ऊपर आप अपने थोड़े प्रकाश डालें। So competitive coding, like it's something that your logical building skills is like at par the best. जितना मुझे समझ में आता है competitive coding का मतलब. So what I saw in me is that I was able to code, but जो logical building skills है वो बहुत slow है मेरे लिए. Like it's almost like that the question which I'm getting, इसको सोचने में, analyze करने में, I'm taking a lot of time. So I saw that okay, so competitive coding is not for me. Now coming to your question, कि whether it's the most quintessential skill when I'm talking about placement in FANG companies. So first of all, no, it's not. Second of all, they're not looking for robots who will code 24/7. They're looking for people with logics which they can apply in different scenario. Now ये चीज मैं पहले resolve कर देती हूँ that yeah, I say that I was not looking for software development roles, but it doesn't mean that I do not code at all. Like I still practice coding. I'm still trying to improve it. Like it's a skill which perfects with time. Now it same happens, for everyone. That even if you're trying to start with any language, it will take time. But it totally depends upon your interest, your genre, whatever you want. Now, as per my experience, Google, the position which I applied did not require any such, coding skills. You need to be a best coder or you need to be a competitive coder. सिमिलरली अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की भी बात करूँ, ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसमें आपको कोडिंग नहीं भी आती हो, देन इट्स ओके, देन इट्स फाइन. But if you are trying for, Google software development roles,
then वो expect करते हैं आपसे that you need to be the best, like you need to be very good at your coding, and then you need to think about your competitive coding skills. See, it's very clear that if you think that you are good at coding and if you want to apply for jobs in that field, you have to apply for competitive coding, you have to improve your skills, you have to focus only on coding and data structures. But if you're someone who is just like me, who do not want completely in coding, who want to explore the other sides, जैसे कि information security हो गया, system administration, so ये सारे jobs के लिए you need not to be a professional in a competitive code. But हाँ, since you're a software engineer, so you need to know coding, like you need very well. मतलब ऐसा है ना कि गूगल में घुसने के लिए तुम्हें कोडिंग जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे रोल्स हैं, अगर तुम उसको कर हाँ, सकते हो। और भी अगर बहुत सारे हाँ, रोल्स हैं। I would try to mention कुछ और प्रोग्राम्स भी है, जैसे I got placed in IT residency program. ऐसे if someone is interested in machine learning, तो Google AI residency program भी है, जिसमें वो सिखाते हैं आपको about how they implement the machine learning components into Google search. वो काम भी करवाते हैं आपसे, and after the tenure they also provide you a conversion that you can work from them as for a permanent period of time. इतनी बड़ी कंपनीज में जाने के लिए कोडिंग की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोडिंग का इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल आप उसके अंदर हाँ, घुस सकते so हो। और हाँ, exactly, you don't need to get worried. और अगर इंटरेस्ट है तब तो फिर तो अलग ही बात हो गई, फिर तो Yeah, फिर then तो जा वही ही है सकते ना हो। सीन कि हाँ, that if you are good at something, be best. Otherwise, don't try it. Like it's my philosophy. सो इसमें तुम्हें जैसे तुम्हें जॉब मिली, प्लेसमेंट लगा, तो इसका क्या प्रोसीजर रहा, कैसे अप्लाई किया, या ऑफ कैंपस किया या ऑन कैंपस किया? So ये जो Google ITRP program के लिए, like Google came into our campus via Google Online Challenge. तो ये एक मींस इट्स ऑन online कैंपस written जॉब। test हुआ था. But if Yeah, on campus. कैंपस। But if you're campus, so you can do one thing, subscribe to Google Careers. So Google Career में you will get emails directly from Google if there is an opening, and वहाँ पे you can directly fill in the application, and then the processes are interviews होते हैं, and if you're performing well in the interview, then you will get an offer letter. That's it. It's very simple. But you need to be very sure about every answer which you put. ओके, सो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने के बजाय हम कुछ अलग से करते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ओके, जिनके प्लेसमेंट्स में अभी 2 साल है या 3 साल है, या जो अभी कॉलेज में अगले साल आएंगे, मतलब अभी उनका 12th है, अगले साल से शुरू करना है, सो उनके लिए कोई टिप्स कि मतलब कैसे कॉलेज लाइफ को स्पेंड करें अपार्ट फ्रॉम कोविड, मतलब कॉलेज में घुसने के बाद? Yeah, absolutely. So first thing is enjoy your college life. Like it's not going to come back once you join your corporate world. So try to enjoy it to the fullest, but also study. So first and second year में ये होता है कि we always think अरे अभी तो बहुत time है, पढ़ लेंगे, भी कर लेते हैं and all this thing. But the thing is, if you really want to excel, if you really want to chase your dream, then start building your foundational knowledge. अब मैं कंप्यूटर साइंस में कुछ सब्जेक्ट्स के मैं नाम लूंगी. Those are the foundational subjects. First हो गया data structures, second computer networks, operating system, database, and any one programming language. पीयूष अगर मैं कुछ skip कर लियो please add on. मुझे तो यही याद आ रहे हैं. So try to make this 5 subjects like your core, and jitna ho sake like try to learn, engage yourself, try to follow your dream companies jaise Microsoft, Google over social media jaise Instagram, Twitter, LinkedIn. बहुत सारे updates miss हो जाते हैं. But if you try to follow them on social media, तो notifications आ जाते हैं that Google is hiring या फिर Microsoft is looking for interns. So try to do that. Communicate with your seniors.
लाइक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भी आई ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट गूगल ITRP फ्रॉम माई सीनियर। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इंटरेक्शन होनी चाहिए सीनियर्स के साथ। एंड yeah, last I would say that be confident, just believe on yourself. तो These are बेसिकली the ये है ना कि tips. सीनियर्स के साथ जितना बना के रखोगे, और अगर वो तुम्हारे कॉलेज के सीनियर्स हैं तो वो तुम्हें डेफिनेटली गाइड करते रहेंगे, मतलब 1 साल 2 साल 1 साल तक के जो सीनियर्स हैं बड़े, वो तो तुम्हारे Absolutely. टच में रहते ही हैं, क्योंकि तुम 1 2 साल तक के रहते हो। वो तो और हाँ। उसके ज्यादा 3 4 इयर्स के बाद वो शायद मुश्किल होता है, बट 1 2 साल वाले भी चलता है, क्योंकि मुश्किल होता है उनके हाँ। साथ भी एक्सपीरियंस हो जाता है तुम्हें। सो उनके टच में रहो, राइट राइट। उनसे जितना बना के रख सकते हो। ये नहीं कि मतलब हाँ हम उनसे क्यों पूछे, वो अभी मेरे से 1 साल ही तो बड़े हैं। उनसे जाओ, उनको पूछो, उनका पूरा दिमाग खा जाओ कि हाँ कैसे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सो दिस विल डेफिनेटली वर्क। ओके, सो जैसे मैं तुम सबको बता दूं दैट इसने अभी तक 3 साल, हाँ 3 ही साल बोल सकते हैं क्योंकि 4 साल तो गए अब। तो 3 साल इसने हॉस्टल में मतलब अपनी लाइफ पूरी अपनी कॉलेज लाइफ को स्पेंड किया। सो इफ यू आर प्लानिंग कि जो भी अभी फर्स्ट ईयर में वो नहीं मिल रहा कॉलेज या नहीं जा पा रहे हो, सो अगर हॉस्टल का प्लान कर रहे हो, सो यहाँ पे दोनों हॉस्टलर्स हैं। मैं तो 2 साल के बाद मैंने कर दिया लीव, ठीक है। सो शी विल डेफिनेटली टेल यू दैट हाँ क्या क्या तुम्हें हॉस्टल किस तरीके से तुम्हारी लाइफ को बनाता है, या फिर कैसे तुम्हारे कैरियर डेवलपमेंट में वर्क करता है। तो इसके बारे में कुछ बताओ। तो हॉस्टल में ये होता है दैट यू आर योर ओन गार्जियन, दैट यू विल टेक योर ओन डिसीजन, सब कुछ खुद से होता है। दैट इफ यू थिंक कि आज नहीं कॉलेज जाना है तो नो बडी विल फोर्स यू कि नहीं यार चल लेते हैं एंड ऑल दिस। सो डिसीसिव मतलब जो डिसीजन लेने की पावर है वो बहुत इंक्रीज होती है। यू विल बी मोर इंडिपेंडेंट लिविंग इन हॉस्टल। एंड ऑफ कोर्स मेमोरीज बहुत अच्छे बनते हैं। आई मीन I can remember very clearly all my 3 birthdays celebration has been amazing in hostel. So if you're thinking ki to take hostel or not, I will say जैसे पीयूष ने किया, try for first 2 years staying in hostel. उसके बाद अगर I can stay by my own outside with more added freedom, तो okay, you can do that also. मतलब दोनों सही है। वही है ना कि मतलब कॉलेज में जाके हॉस्टल लाइफ नहीं जी फिर क्या जिया। अगर तुम पहले साल से ही जाते हो कि Exactly. बाहर जाके मैंने पीजी या फ्लैट ले लिया, तो वो मजा नहीं आता ना। फिर तुम 4 साल के बाद तुमसे कोई पूछेगा हॉस्टल में क्या किया, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो पहले से ही वहीं बैठा था, ठीक है। सो मैंने तो बहुत बढ़िया 2 साल में हॉस्टल में रहा, मजे किए। फिर जाके अपना इंडिपेंडेंट रहना भी बहुत जरूरत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना बहुत कुछ सिखाता है। ओके, सो हमें इतना पता चल गया कि हाँ बाहर रहना चाहिए या हॉस्टल रहना चाहिए, ये सब कुछ हो गया। सो एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो लोग पढ़ाई में नहीं अच्छे होते यार, जिन्होंने मतलब 3 साल में पढ़ा बहुत कम और सारी मटर गश्तियां बहुत ज्यादा कर ली। मतलब वो कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, मतलब उनको नहीं मिला कुछ। और उनका ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमारी रीअपेयर्स आ गई हैं कॉलेज में, एक भी बार रीअपेयर्स आई, या फिर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर या प्लेसमेंट के टाइम पे अगर रीअपेयर है, तो क्या वो अफेक्ट करता है प्लेसमेंट के टाइम पे। तो इस सिनेरियो में 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक कि समवन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर प्रोजेक्ट्स एंड पढ़ नहीं पाए, या फिर कुछ इंटर्नशिप कर रहे थे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इसीलिए रीअपियर आ गई। एंड द सेकंड टाइप इज कि पढ़ना ही नहीं है, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडीइंग, क्या करना है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, कैंपस प्लेसमेंट टफ होगा उनके लिए। बट इफ दे ट्राई ऑफ कैंपस, अच्छे अच्छे कंपनीज में मिल जाएगी इनको। क्योंकि अगर जो बड़े कंपनीज होते हैं, जो फैंग कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो दे एक्चुअली लुक फॉर योर स्किल्स। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है दैट हाउ मेनी सप्लीज यू हैव, या फिर व्हाट इज योर एज, या फिर ऐसा कुछ। तो उनको बस एक चीज चाहिए, दैट इज हाउ मच यू नो। if you can give that thing to them, then it's fine. बट अगर कैंपसिंग की मैं बात करूँ तो एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है, उसमें अगर बैकलॉग्स है तो उसमें इशू होती है। ओके, मतलब सप्ली का तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता। अगर तुम बड़ी कंपनी में जाओगे तो इतना नहीं, हाँ। लेकिन ऑफ कैंपस के लिए सप्ली हो, तुम्हें कॉलेज गए भी हो नहीं गए हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या मैटर करता है, तुम्हारी स्किल्स बढ़ाओगे।
राइट। एक और भी क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कौन सी चीज ज्यादा हेल्प करती है? तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि इफ़ यू आर गुड एट कोडिंग, देन ट्राई कम्पिटिटिव कोडिंग। कम्पिटिटिव कोडिंग का मतलब ये नहीं होता है दैट आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ कंटेस्ट्स एंड आई हैव this batches and everything. Competitive coding का मतलब ये है that your logical skills are at par the best. कोई भी issue मतलब कोई भी problem statement अगर आपके सामने आती हो, then you will be able to solve it in the most optimized way. So this is the meaning of competitive programming. Like your solution is the best out of all, who have submitted. Now, ये competitive coding is good for those who are trying to be, software developers. So it's great if you are giving solutions which are optimized and the companies. In case of development, I feel that it's a very versatile field where you can implement. मतलब आप कुछ भी सीख लेते हो. For example, if I talk about myself, so I prefer development over competitive coding since my logical things take some time to bloom. So I learn something, I try to research on that thing, I try to implement that thing, integrating others, and develop something which can be used, which can be, which I can show to others that, using this technology, मैंने ये बनाया है, ये इस काम में आ सकती है. इसलिए मैंने एक कोविड नोटिफिकेशन सिस्टम बनाया था which I think it was a development way where I tried to solve something using my knowledge. तो ये इट्स कम्प्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस. अगर आपको कम्पिटिटिव कोडिंग करने में अच्छा लगता है देन डू इट. लाइक इट्स नॉट समथिंग बैड. बोथ वेज आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो आई गेस इतना आज के लिए सही है, क्योंकि अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है, हाँ इतनी बड़ी कंपनीज के लिए तुम्हें कोडिंग की नॉलेज होना कंपलसरी है, तो आई गेस इसका आंसर तुम्हें अब प्रॉपरली मिल चुका होगा. अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुम जा करके हेबिलिना को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो. वहां जाके जितने मैसेज करने हैं एक से बढ़ के एक करो मैसेज, लेकिन स्पैम कुछ नहीं, कोई भी बकवास नहीं. अदरवाइज तुम्हें पता है लड़कियों का क्या सीन होता है, डायरेक्ट ब्लॉक. सो उससे बचने के लिए उस चीज से बचने के लिए आराम से, अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं जाओ, मैं लिंक नीचे कर दूंगा प्रोवाइड, इसका इंस्टाग्राम और वहाँ का लिंक्डइन का. वहाँ पे जाके इसको फॉलो करो, क्वेश्चंस पूछो. लाइक जब मैं प्रिपेयर कर रही थी फॉर माय प्लेसमेंट, तो आई यूज्ड टू पेइंग ऑल माय सीनियर्स. मतलब मैं दिमाग खा लेती थी कि ये भी बताओ वो भी बताओ. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू रिटर्न बैक. तो डोंट feel bothered to ping me if the query is genuine, but if there is any kind of ऐसे फालतू के messages, ब्लॉक. yeah, सिंपल क्लियर एंड कट ब्लॉक. तो अगर ब्लॉक से बचना है तो सिंपल से मैसेज करो. और आई गेस आज का वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा. आज को इतना ही रखते हैं, और फिर तो अगर कुछ करना हो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक्डइन खुला हुआ है. और हाँ, वन मोर थिंग, मैंने लिंक्डइन पे एक कम्युनिटी बनाई हुई है, तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है. उस पे जा करके हम लोग कुछ अपने एक्सपीरियंस या फिर अगर कोई नए लिंक आते हैं वहां पे कर सकते हैं. अदरवाइज right. जो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर, गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग. बाय बाय.